Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Kharse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. Now, dear students, in this session, we are going to learn our chapter 9, Introduction to Visual Basic 6.0. Now, in this chapter, we are going to learn basics of Visual Basics hmm, and IDE Playground. What is IDE Playground? Means what it's provide to users. Then again, Visual Basic Project, how actual the project is selected, which kind of project is selected, and how we can start the project. This is all about the Visual Basic project. Then next point, basics of objects and OOPs, means which concept we are using, huh? Or which approaches we are using in our Visual Basic project. So these four topics that we are going to learn in this chapter, Introduction to Visual Basic 6.0. Now let us start our chapter. Now, I think, my dear student, you have already learned the basic that is basic language, that is QBasic. QBasic you have already learned. Now, this chapter introduces the basic of Visual Basic. Means it is a very it is a standard language, higher language than QBasic, and that is nothing but the Visual Basic 6.0. This language provides this language provides means it is the object oriented language, or Visual Basic is the high level programming language. Visual Basic is object oriented language, Visual Basic is the high level programming language, and this language provides GUI for designing and developing the application. Means Visual Basic language provides GUI. GUI, what is GUI? GUI means graphical user interface. This user interface is provided by the Visual Basic for designing and developing the application. Designing and developing means design and develop the software or application as per the users requirement. हाँ, कोई भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग GUI की हेल्प से, विजुअल बेसिक की हेल्प से हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम. विजुअल बेसिक इज ऑल्सो नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इवेंट मतलब in Visual Basic we can construct different events, and we can apply that events, we can construct that event step by step, and we go step by step and develop a full software. Means it is the event driven programming. Event, there are different event, just like click event, double click event, again selecting event, again deleting event. So all these are different events that we are going to use for developing the program. So that's why it is called as a event driven programming language. Now, Visual Basic, there are two types of components available. In Visual Basic, there are two types of components. The first is object reference and second is control. First is object reference and second is control. Controls are visual components. जो हमें दिखाई देते हैं, controls are the visual components, and object reference, these components we cannot see, we just refer, we are referencing, हम लोग उसका रेफरेंस लेते हैं. मतलब हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग में उसका ऑप्शन यूज करते हैं, बट दे आर नॉट विजिबल टू अस. हमें वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनका बैकग्राउंड में उनका रेफरेंस लेते हैं. सो दैट इज द टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड सेकेंड इज कंट्रोल. ऑब्जेक्ट रेफरेंस कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देता है, उसका हम लोग सिर्फ रेफरेंस लेते हैं. और कंट्रोल्स, ये जो कंपोनेंट है दैट वी कैन विजुअल, वो हमें दिखाई देता है, एंड वी कैन प्लेस इन अवर फॉर्म विंडो. हमारे फॉर्म विंडो पे हमारा जो डिज़ाइन मोड होता है विजुअल बेसिक का फॉर्म विंडो, वहाँ पर हम लोग कंट्रोल्स को प्लेस करते हैं, एंड वी कैन असाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंट्रोल्स. तो कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स होते हैं? कमांड बटन होता है, रेडियो बटन होता है, लिस्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लेबल होता है, किसी को अगर हमें कैप्शन देना है तो हम लोग लेबल यूज़ करते हैं, फ्रेम्स होते हैं. सो देयर आर मेनी कंट्रोल्स आर देयर दैट वी कैन फिजिकली
place on the form window. This is all about the basics of Visual Basic. Now let us start our Visual Basic. See more in details how we can see. Now what is the next? See in the next page you see starting Visual Basic, how you can start the Visual Basic. The steps are here. There are 4 to 5 steps are there. You click on the start button, select all apps, go in the sub menu, appears on the screen, select Microsoft Visual Basic 6.0, sub menu appears on the screen. Select again Microsoft Visual Basic 6.0, double click it on, open this software, and the Microsoft Visual Basic Windows along with the new project dialog box appears. Select standard exe icon and click open. These are the 5 steps how we can start. See, let us do the practical now. Click on the start button, go in the all programs. Third step, find out the Microsoft Visual Studio 6.0. Then select the Microsoft Visual. The one window is coming. Here is the 3 options: new, existing, and recent. If you click on the new, means you have to create new project. If already present, already created project, you have to select. You select from existing. And recent. If number of projects are there, from among all these projects, you have to select anyone that is created earlier or recently. So recent project you can select from this option. Now what we do, we click on the new tab, we select the standard exe. All these are the different types of projects options are there, but in our syllabus we can choose standard exe. So click on the standard exe, open, and this type of window is coming in front of you. This is the form window. A form window hai. In the right side you find out the project, in the left side you find out the different tools. So this is the IDE playground. Now see, standard exe project leads to the creation of .exe. When we create or open exe project, so .exe extension is applied to this project. ये प्रोजेक्ट को .exe एक्सटेंशन अप्लाइड हो जाता है और इट विल बी ओपन इन IDE playground. IDE playground. Now what is mean by IDE playground? See, IDE playground क्या होता है? IDE playground, see, IDE playground, it is an integrated development environment. It is integrated development environment. किसे कहते हैं IDE playground? ये जो पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है हमें, दिस ऑल स्क्रीन, ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट से राइट तक, दिस इज ऑल screen is called as a IDE playground. IDE playground means integrated development environment. Integrated development environment, and it is the programming environment that has been stacked, consisting of code, editing, compiler, debugger, and also GUI builder. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोड डाल सकते हैं. इसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, मतलब इसको पूरा चेक करके इसको रन कर सकते हैं. और ये सब हम लोग प्रोजेक्ट यही IDE एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हैं. सो IDE वर्क्स एज एन इंटरफेस. तो IDE का मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस. ये एक इंटरफेस है फॉर विजुअल बेसिक 6.0. विजुअल बेसिक 6.0 के लिए एक इंटरफेस है. कोई भी विजुअल बेसिक में अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये एक इंटरफेस है. यहाँ से हम लोग डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं. नाउ सी, फर्स्ट ऑन द टॉप, दैट इज द प्रोजेक्ट 1. जहाँ पे प्रोजेक्ट 1 दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार. द टाइटल बार अपियर्स एट द टॉप एंड ऑफ द विजुअल बेसिक. टाइटल बार टॉप एंड पे आ जाता है, एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. हमारे प्रोजेक्ट का नाम डिस्प्ले करता है. देखिए टाइटल बार पे प्रोजेक्ट 1 दिखाई दे रहा है, और राइट साइड पैनल में यहाँ पर भी, राइट साइड पैनल में यहाँ पर भी प्रोजेक्ट नाम दिखाई दे रहा है. सो द सेम नेम इज अपियर्स ऑन द टाइटल बार. बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम एज ए प्रोजेक्ट 1. अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम प्रोजेक्ट 1 वो ले लेता है. इफ़ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज इट. आप उसको चेंज भी कर सकते हो. कहाँ से चेंज कर सकते हो? यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज दी गई है. देखिए जब आप उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज दी गई है, तो यहाँ से आप उसका नाम
चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम लोग उसका नाम कर देते प्रोजेक्ट क्लास 8, प्रोजेक्ट क्लास 8। नाउ दिस इज, नाउ इट चेंज। तो यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया प्रोजेक्ट क्लास 8, और यहाँ पे टाइटल बार पर भी देखिए, यहाँ पर भी वो उसका नाम चेंज हो गया। नाउ इन दिस वे वी कैन चेंज द अवर नाम। नाउ दिस इज द डिजाइन मोड। नाउ हियर इज द डिजाइन मोड। थ्री मोड्स आर देयर, डिजाइन मोड, रन मोड एंड सस्पेंडेड ब्रेक मोड। डिजाइन मोड क्या होता है? व्हाट इज डिजाइन मोड? सी व्हाट इज डिजाइन मोड। डिजाइन मोड क्या होता है? देखिए यहाँ पर, what is design mode? This mode is used to create or design the application. This mode is used to create and design the application. This is design mode. This is the form window. ये form window है, इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं इस फॉर्म विंडो में। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, ये पहला फॉर्म है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा हम लोग डिज़ाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन मोड, ये डिज़ाइन मोड है। रन मोड, दिस मोड इज यूज टू एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन। रन मोड कहाँ पे मिलेगा हमें? जब हम लोग ये यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद, सारे कंट्रोल डालने के बाद रन मोड में जाएंगे। रन मोड कहाँ से मिलेगा? हम लोग यहाँ पे सेकेंड बार है, मेनू बार में हमें रन ऑप्शन, रन टैब दिखाई दे रहा है। तो रन मेनू में जाके हमें स्टार्ट बटन दबाएंगे। व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन वी गो इन द रन मोड। हम लोग रन मोड में आ गए। देखिए ये फॉर्म रन हो गया है, यहाँ पर ये फॉर्म क्या हुआ है? रन हो गया है, मतलब ऑपरेट हो गया है। तो इस तरह से फॉर्म हमें दिखाई देगा। जब हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद हमें फॉर्म कैसे दिखाई देगा? इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी कंट्रोल्स डाले नहीं है, इसलिए हमें वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग रन मोड से बाहर निकल जाते हैं। देखिए रन मोड से बाहर आ गए। Suspended or break mode. This mode is used to pause the execution of any code in an application. It also allows you to edit the code and make changes in the design. Suspended and break mode. How you can find out the suspended or break mode? Here is the break mode. You click on the run option, run menu. Here is the break option. Break. Break means what? When you type some code. जब आप कोड विंडो में जाओगे, कोड विंडो में जाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये आप डिजाइन मोड में, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप कोड विंडो में चले जाओगे। यू गो इन द कोड विंडो। आप कोड विंडो में चले जाएंगे तो यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हो? ब्रेक लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट सब फॉर्म लोड। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे देखिए ये डॉट आ गया, यहाँ पर यहाँ पे ब्राउन कलर का डॉट आ गया। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, जब यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आप ब्रेक मोड पे आ जाते हो। जब आप इस फॉर्म को रन करोगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जब आप इसको रन करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जब इसको क्लिक करोगे तो देखिए आप यहाँ पर आ गए। हमारा कर्सर यहाँ पर ये येलो कलर में आ गया, मतलब इट कम्स इनटू द ब्रेक मोड, सस्पेंडेड मोड में आ गया, ये ब्रेक मोड में आ गया। देखिए इसको यहाँ पे, मतलब जब वो फॉर्म रन हुआ, ऑपरेट हुआ, तो कर्सर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से वो चेक करेगा, आगे जाएगा। जब हम लोग इसको F9 F8 बटन दबाएंगे, F8 मतलब हम लोग जब आगे जाएंगे, F8 बटन दबाकर हम लोग क्या करते हैं? आगे जाते हैं, चेक करते जाते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ कोड है वो सही है क्या नहीं। अगर सही है तो इट गिव्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, इफ इट इज रॉन्ग इट गिव्स एरर, आपको एरर दे देगा। उसी लाइन पर आपको यहाँ पर एरर दे देगा, वहाँ से वो आगे जाएगा नहीं, वहाँ पर आपको एरर दे देगा। तो ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट, वहाँ पर आपको वो एरर दिखाई देगा। अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है तो, आपका गलत कोड है तो। तो इस तरह से आप क्या करते हो? आपका कोड सस्पेंडेड और ब्रेक मोड में चेक करते हो। सो दीज आर द थ्री मोड्स: डिज़ाइन मोड, रन मोड एंड सस्पेंडेड मोड। डिज़ाइन मोड हम लोगों ने देखा, हम लोग इसको अभी F5 बटन दबा देते, ये पूरा रन हो गया, मतलब इसमें कुछ एरर नहीं था क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी लिखा नहीं, इसलिए उसने एरर नहीं दिया। तो वापस हम लोग हमारे डिज़ाइन मोड पे आ जाते हैं। तो डिज़ाइन मोड, दिस इज़ द डिज़ाइन मोड। तो इस पर अगर आपको नेविगेट होना है डिज़ाइन मोड और कोड विंडो में, फॉर्म विंडो और कोड विंडो में, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर राइट साइड में प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म, जिस फॉर्म पे आप क्लिक करोगे वो फॉर्म यहाँ पर डिज़ाइन,
राइट साइड में व्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा माउस मूव हो रहा है यहाँ पर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डिजाइन मोड, आप डिजाइन मोड में आ जाओगे। व्हेन यू क्लिक ऑन द व्यू कोड आप कोड विंडो में चले जाओगे। यहाँ पर व्यू कोड में आप क्लिक करोगे राइट साइड में यहाँ पर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस व्यू कोड, यू गो इन द व्यू कोड। इफ यू क्लिक ऑन द व्यू ऑब्जेक्ट, तो आप कोड विंडो फॉर्म विंडो में आ जाओगे, डिजाइन विंडो में आ जाओगे। सो दीज आर द टू डिफरेंट विंडोज, जहाँ पर आप डिजाइन करोगे और जहाँ पर आप कोडिंग लिखोगे। नाउ द नेक्स्ट, मेनू बार. What is menu bar? On the top menu, this is the menu bar: file, edit, view, project, format, debug, run, query. So all these are the tabs which are present on the menu bar. उसे मेनू बार कहते हैं। उस मेनू बार में बहुत सारे टैब्स अवेलेबल है। द मेनू बार प्रोवाइड्स मेनूज एंड सब मेनूज दैट कंटेन्स स्टैंडर्ड कमांड्स यूजफुल इन वर्किंग विद द विजुअल बेसिक। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड कमांड्स होती है। इस मेनू बार में बहुत सारी स्टैंडर्ड कमांड होती है, जैसे कि फाइल मेनू में न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट, रिमूव प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, सेव फॉर्म, प्रिंट। सो दीज आर द ऑप्शंस आर हियर। इन द एडिट मेनू, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट। अगेन व्यू मेनू, कोड विंडो, ऑब्जेक्ट विंडो। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट विंडो पे जाओगे तो आप ऑब्जेक्ट विंडो या डिजाइन मोड में आ जाओगे। अगर आपको कोड विंडो पे जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। सो दीज आर द टू ऑप्शंस हियर, यू गो फ्रॉम व्यू मेनू और यू गो फ्रॉम दिस ऑप्शन। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस हियर। ओके, now what is next? Toolbar. What is toolbar? The toolbar refers, where is the toolbar? See, this is the toolbar. ये जो मेनू बार के नीचे जो है, दिस इज कॉल्ड टूलबार। ये क्या है, एक टूलबार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक, यहाँ से आप जो प्रोजेक्ट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म ऐड कर सकते हो, अगर नया फॉर्म ऐड करना है फॉर्म ऐड कर सकते हो, मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, क्लास मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो तो क्लास मॉड्यूल ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। तो इस तरह से आप क्या है, प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐड कर सकते हो। है समझ में आपके प्रोजेक्ट में। नाउ हियर इज द फोल्डर, ओपन फोल्डर। आपका जो है प्रोजेक्ट है यह कहाँ पर सेव हुआ है, कहाँ सेव करना चाहते हो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो सेव। अगेन ऑल दीज आर द ऑप्शंस। हियर इज द प्रॉपर्टी। आपको अगर टूल बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, ये यहाँ पर ये टूल बॉक्स है, दिस इज द टूल बॉक्स। अगर ये टूल बॉक्स मैंने बंद कर दिया और आपको टूल बॉक्स चाहिए तो टूल बॉक्स आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखिए ये टूल बॉक्स, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टूल बॉक्स, आपको यहाँ पर टूल बॉक्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए टूल बॉक्स। ये इसके टूल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो हम लोग फॉर्म विंडो पर डालते हैं, हमारे फॉर्म विंडो पर डालते हैं। यहाँ पर यहाँ से हम लोग उसको उठाते हैं और यहाँ पर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने से वो यहाँ से निकल कर हमारे फॉर्म विंडो पर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टूल बॉक्स। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो कौन सा है? दिस इज कॉल्ड फॉर्म विंडो। ये जो हमारे सामने है ये फॉर्म विंडो। यहाँ पर ये हम कंट्रोल्स यहाँ से उठाकर हम लोग यहाँ पर डालते हैं हमारे फॉर्म विंडो पर। देन नेक्स्ट इज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हो गया, टूल बार हो गया। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो कहाँ पर है? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो यहाँ पर राइट साइड में देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। मतलब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कौन से फॉर्म्स है, मॉड्यूल्स है, क्लास मॉड्यूल्स है, यहाँ पर उनका पूरा लिस्ट ट्री, उनका पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। जैसे भी अभी हम लोगों ने सिर्फ फॉर्म्स डाले हुए हैं, एक फॉर्म डाला हुआ है तो एक फॉर्म यहाँ पर फॉर्म विंडो में भी दिखाई दे रहा है और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में भी दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स लिस्ट आउट हो जाती है। यहाँ पर फॉर्म्स, अगर हम लोग मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू मेनू में जाएंगे। यहाँ पर व्यू मेनू में हमें अगर प्रोजेक्ट ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये टूल बार पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ब्राउजर, टूल बॉक्स, क्लास मॉड्यूल, हाँ दिस इज, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्म। अगर हमें और एक फॉर्म ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म।
न्यू फॉर्म ऐड करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे और एक फॉर्म ऐड हो गया। देखिए फॉर्म सेकेंड नंबर का फॉर्म आ गया यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में भी आपको देखिए 2 फॉर्म दिखाई देंगे, फॉर्म 1 फॉर्म 2 है, मतलब 2 फॉर्म ऐड हो गए। इस तरह से हम लोग फॉर्म ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमें रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव करना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाके उस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फॉर्म 2, तो हम लोग फॉर्म भी रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्म ऐड करेंगे, एमडीआई फॉर्म ऐड करेंगे। मतलब बड़े फॉर्म में एक छोटा फॉर्म डालना है तो उसको एमडीआई फॉर्म कहते हैं। तो दैट छोटा फॉर्म भी हम लोग उसमें डाल कर सकते हैं। दिस इज द मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल में हम लोग अलग से कोडिंग करते हैं। और वो मॉड्यूल अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं, हम लोग मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल ओपन करने से यहाँ पे मॉड्यूल ऐड हो जाता है। देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में दिखाई दे रहा है एक मॉड्यूल यहाँ पर ऐड हो गया। वी कैन यूज द मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल कैसे यूज किया जाता है, क्लास मॉड्यूल कैसे ऐड किया जाता है, इसको अगर रिमूव करना है तो सेम वे यू क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, रिमूव मॉड्यूल, तो यहाँ से वो निकल जाएगा मॉड्यूल। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो उसको, रिमूव मॉड्यूल, तो यहाँ से मॉड्यूल निकल जाएगा। मीन्स यू कैन ऐड द मॉड्यूल, यू कैन रिमूव द मॉड्यूल। इफ यू वांट टू ऐड द क्लास मॉड्यूल, यू कैन ऐड द क्लास मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन ऐड इन योर प्रोजेक्ट, यू कैन रिमूव द फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। आया समझ में? नाउ सी we are going to see the next topic, that is what form layout कहाँ पर होता है? when you click on the design mode, तो यहाँ पर सबसे नीचे प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज विंडो के नीचे यहाँ पर ये देखिए सबसे नीचे हमें फॉर्म लेआउट दिखाई दे रहा है। फॉर्म लेआउट, ये देखिए ये फॉर्म लेआउट। What this form layout is show? The form layout window is used to find the position of form. आपका फॉर्म का पोजीशन आपके विंडो पे किस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये मॉनिटर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये मॉनिटर दिस इज फॉर्म विंडो में, फॉर्म लेआउट में ये मेरा माउस मूव हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए दिस इज द मॉनिटर, ये हमारा मॉनिटर है। तो इस मॉनिटर पे हमारा फॉर्म कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पर ये फॉर्म हम लोगों का इतना छोटा सा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसका चेंज दिखाई देगा। ये देखिए वहाँ पर हमारे कंप्यूटर पे हमारा फॉर्म कैसे दिखाई देगा, इस तरह से हमारा फॉर्म दिखाई देगा हमारे मॉनिटर का। जैसे हम लोग इस फॉर्म को चेंज करते जाएंगे उस तरह से हमें फॉर्म लेआउट में हमारा फॉर्म चेंज होते हुए दिखाई देगा। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से अगर हम लोग इसको और बढ़ाते तो इस तरह से हमारा फॉर्म यहाँ पे हमें छोटा बड़ा हुआ फॉर्म लेआउट में दिखाई देगा। मतलब हमारे स्क्रीन पर हमारा फॉर्म कैसे दिखाई देगा, वो हमें फॉर्म लेआउट में दिखाई देता है। सो दिस इज फॉर द फॉर्म विंडो। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सी the toolbox refers some control and how we can use this control and what is their functions। अभी ये जो टूल बॉक्स हमारे यहाँ पर है राइट साइड में, ये देखिए ये जो टूल बॉक्स है, ये वाला टूल बॉक्स यहाँ पर, ये जो टूल बॉक्स इसमें जो कंट्रोल्स है, वो जो कंट्रोल्स है वो हम लोग उनका मीनिंग क्या है, वो किस लिए यूज किया जाता है, वो वन बाय वन सारे कंट्रोल्स हम लोग देखेंगे। सी अभी ये कंट्रोल्स हम लोग देखेंगे, हाउ वी कैन सी दिस कंट्रोल। फर्स्ट इज अ पॉइंटर, पहला है पॉइंटर। ये पॉइंटर करता क्या है, द पॉइंटर टूल इज यूज टू पॉइंट और सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो। द पॉइंटर टूल क्या करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर टूल। द पॉइंटर टूल इज यूज टू पॉइंट और सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और विंडो, एनी ऑब्जेक्ट और विंडो। यहाँ पर ये जो पॉइंटर है, ये क्या करता है, एनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हेल्प करेगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अभी मैंने लेबल पे क्लिक किया तो लेबल पे वो उसने पॉइंट करने के लिए हेल्प किया, मतलब लेबल को मैं सिलेक्ट कर पाया।
दिस इज कॉल्ड पॉइंटर. नाउ द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन लेबल. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लेबल. हाँ, नेक्स्ट टूल क्या है? लेबल. द लेबल टूल इज यूज टू क्रिएट द लेबल. हाँ, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग लेबल देते हैं कि नहीं? लेबल माने एक नाम देते हैं, तो उस लेबल से हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है. सो वी कैन यूज द लेबल फॉर दैट पर्पज. द डिफॉल्ट नेम फॉर द लेबल इज लेबल 1. अगर हम लोगों ने लेबल को नाम नहीं दिया तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ जाता है? लेबल 1. यहाँ पर देखिए लेबल टूल बॉक्स में, ये मेरा माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेबल. व्हेन वी क्लिक ऑन दिस लेबल वी प्लेस द लेबल इन दिस वे इन आवर फॉर्म विंडो. हमारे फॉर्म विंडो पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं. और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं यहाँ से राइट साइड में. हाँ, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है. हाँ, ये प्रॉपर्टीज इसको अब हम लोग डबल क्लिक करते हैं, वापस अपनी जगह पे चला जाता है. हाँ, ये फॉर्म लेआउट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ या क्लोज कर देता हूँ. देखिए हाँ, ये लेबल है. यहाँ पर ये लेबल, यहाँ पर लेबल का नाम हम लोग दे सकते हैं. यहाँ से कैप्शन, उसका कैप्शन मैंने यहाँ पे कैप्शन पे राइट साइड में यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ है और वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. देखिए अभी कैप्शन, इसका कैप्शन हम लोग दे सकते हैं यूज़र नेम. मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला तो लेबल पे देखिए यूज़र नेम आ गया. अगर इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट, तो हम लोग इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं. हम लोगों ने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया. दूसरा लेना है दूसरा, या बड़ा करना है तो बड़ा. ये हम लोगों ने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया. इस लेबल को हम लोग उन्हें नाम दे दिया. इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम ले सकते हैं. और एक दूसरा लेबल लेना चाहते हैं तो हम लोग दूसरा लेबल ले सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम आ गया लेबल 2. लेबल 2. अगर हम लोग इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसका हम लोग कैप्शन चेंज करेंगे. कैप्शन में यहाँ पे नाम दिया पासवर्ड. अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँगा यहाँ से फॉन्ट से. आई कैन चेंज द फॉन्ट फ्रॉम दिस पोजिशन. यहाँ in this way I place the two labels here. अगर इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से प्रॉपर्टीज से. मुझे जो कलर चाहिए वो मैं कलर यहाँ पे दोनों को दे सकता हूँ. यू कैन चूज द डिफरेंट कलर. ओके, दिस इज द लेबल. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? फ्रेम. Third control is frame. The frame tool is used to create a frame and the default name for a frame is frame 1. Default name क्या आ जाता है? frame 1. The second this control is called as a frame. When you click on this frame and drag here, what this frame is doing? This frame shows the group of the your control. आपका कंट्रोल का ग्रुप एक इसमें दिखाना है. मतलब ये जो कंट्रोल्स है ये अलग ग्रुप के कंट्रोल से और बाकी जो ग्रुप कंट्रोल से वो अलग ग्रुप के. यहाँ पर एक फ्रेम तैयार हो गई. फ्रेम माने टू शो द पिक्चर्स. हम लोग पिक्चर एक फ्रेम में कोई भी पिक्चर हम लोग फ्रेम में डालते हैं ना, तो सेम वे द फ्रेम इज यूज. मतलब किसी एक चीज़ को दर्शाना है, हमें शो करना है, तो उसके लिए फ्रेम है. तो उस फ्रेम को हम लोग नाम भी दे सकते हैं. मतलब यूज़र, अभी ये फ्रेम मैंने यहाँ पे डाली तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? यूज़र क्रीडेंशियल. यूज़र क्रीडेंशियल माने व्हाट? यूज़र क्रीडेंशियल मतलब लॉगिन करना या यूज़र पासवर्ड डालना. ये उसका काम है. मतलब ये फ्रेम वही काम करेगा. ये देखिए यहाँ पर ये फ्रेम आ गया. इसको मुझे बैकग्राउंड में डालना है तो ये बैकग्राउंड में चलेगा. आई जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन दिस फ्रेम, सेंड टू बैक, तो ये पीछे चला जाएगा. ये देखिए इन दोनों लेबल्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा दोनों लेबल्स को यहाँ से कंट्रोल बटन दबाकर यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स किया और इस पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया. यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया. तो दोनों यहाँ पर लेबल पर आ गए, फ्रेम पर आ गए. और ये फ्रेम मैं कहीं पर भी घुमा सकता हूँ.
हाँ, अभी मतलब इस फ्रेम पे मैंने ये लेबल दोनों डाल दिए। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम। तो फ्रेम का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए, उसको शो करने के लिए ये फ्रेम का यूज होता है। सो फ्रेम टूल इज यूज टू क्रिएट अ फ्रेम। वो फ्रेम क्रिएट करने के लिए यूज होती है, और फ्रेम 1 इज द डिफॉल्ट नेम। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स किस लिए होता है? चेक बॉक्स टूल किस लिए होता है? द चेक बॉक्स टूल इज यूज टू क्रिएट अ चेक बॉक्स। हाँ, हम लोग कभी कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तब हम लोगों के सामने कभी कभी एक ऑप्शन आता है चेक, हाँ, टिक करने के लिए। हाँ, कोई भी ऑप्शन टिक करने के लिए। सो फॉर दैट पर्पज दिस चेक बॉक्स इज यूज। बाय डिफॉल्ट नेम उसका नाम क्या आता है? चेक वन। चेक वन उसका बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है। चेक बॉक्स कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड यू ड्रैग here, you can place the checkbox. So checkbox is just like for the checking gender, just like male or female. If you want to check, check male or female gender, अगर आपको जेंडर चेक करना है, मेल है या फीमेल, तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के लिए यूज कर सकते हो आप। ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए चेक बॉक्स यूज किया जाता है। अगर इसका नाम आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो मेल, गर्ल और बॉय भी दे सकते हो। गर्ल, गर्ल। इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट बड़ा कर सकते हो। हाँ, देखिए इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गर्ल। हाँ, और एक चेक बॉक्स डालना चाहते हो तो इसको ही कॉपी करो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। हाँ, उसको नो बोलो, और यहाँ पे ये सेकेंड चेक बॉक्स आ जाएगा। मतलब क्या? चेक बॉक्स 2, और इसको नाम दे सकते हो बॉयज, बॉय। आया समझ में? इन दिस वे you can make the checkbox. And for what purpose we are using checkbox? For making true or false. If you want to check two options, either one or either second, for that purpose you are using the checkbox. इसलिए checkbox आ जाता है। Now what is next? Combo box. Next control is combo box. Combo box tool is used to create combo box, and the default name of the combo box is combo 1. उसका default name क्या आता है? combo 1. तो combo 1, तो combo box किस लिए यूज होता है? This combo box is used to show the list. Where is the combo box? Here is the combo box. It shows the list. क्या वो क्या करता है? लिस्ट शो करता है सॉर्टिंग करने के लिए। तो combo box is used. When you click on this combo box and you can place the combo box here in this way, means it will shows the list. When you click on this arrow, किसी का लिस्ट, अगर स्टूडेंट का लिस्ट हमें देखना है तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट का लिस्ट बना सकते हैं कॉम्बो बॉक्स से। सो फॉर दैट पर्पज दिस कॉम्बो बॉक्स इज यूज। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द कॉम्बो बॉक्स इज कॉम्बो 1। उसका कॉम्बो 1 ये नाम आ जाता है। आया समझ में? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट टूल इज टाइमर। the timer, what the timer is doing? See, timer, this is the timer. When you click on this timer, ये timer है यहाँ पर। When you click on this timer and place on the form window, it place on the form window. What the timer is doing? The timer tool is used to create the timer, and the default name of the timer is timer 1. उसका default name क्या आ जाएगा? timer 1. timer, तो timer किस लिए यूज होता है? अगर हमें किसी फॉर्म को लिमिटेड टाइम देना है, या कोई भी एंट्री करने के लिए हमें लिमिटेड टाइम देना है, तो लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग टाइमर यूज़ करते हैं। कभी कभी अगर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर हमें यूज़ करना है तो या हम लोग कैप्चा यूज़ करते हैं, तो इतने टाइम में वो कैप्चा वैलिड होता है। कभी कभी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कैप्चा आता है, कोई एक कोड आता है, तो कोड 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो वैलिड होता है। सो फॉर दैट पर्पज दिस टाइमर इज यूज। तो इस तरह से ये टाइमर यूज होता है। एंड बाय डिफॉल्ट द नेम इज टाइमर 1, तो उसके लिए टाइमर यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल इज डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स।
है। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स क्या करता है, व्हाट द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इज डूइंग, है कहाँ पर है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, सी दिस इज द लिस्ट बॉक्स, this is the list box, see this list box, no this is a list box, directory list box is here, this is the directory list box, see when you click on this folder directory list box is appears to you. Directory list box means what, it shows your all directory means C drive, it shows all the drives आपके आपका जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जहाँ पर सेव हुआ है, तो वहाँ से आपका ये पूरा डायरेक्टरी दिखाता है। डायरेक्टरी मीन्स सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है, सो ये सारे ड्राइव्स ये डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में यहाँ पर दिखाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर में अगर कोई चीज़ आपको सेव करनी है, या कोई चीज़ कंप्यूटर से उठानी है, तो तब आपको डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर दैट पर्पज दिस डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इज यूज, तो उसके लिए डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स यूज होता है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज शेप, हाँ सी हियर इज द शेप, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस शेप तो शेप यहाँ पर आ जाता है। शेप मीन्स इट शोज ओनली जस्ट लाइक अ फ्रेम, शेप टूल इज यूज टू क्रिएट अ वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स क्रिएट होता है, सच एज सर्कल, स्क्वायर एक्सेट्रा, द डिफॉल्ट शेप नेम इज दिस। व्हेन यू क्लिक नाउ दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, इफ यू वांट टू चेंज द शेप यू गो इन द प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसका बॉर्डर स्टाइल पे अगर आपको उसका बॉर्डर किस तरह से चाहिए, डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, उस तरह से उसका क्या हो जाएगा, शेप क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप लोग कलर चेंज कर सकते हो उसका, दूसरा कलर चाहिए तो अलग कलर में वो आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अगेन इफ यू वांट टू मेक द शेप इन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ओवल चाहिए, ओवल, इफ यू वांट टू सिलेक्ट सर्कल you select the circle, in this way you can make the shape। अगर यहाँ पर आपको शेप यूज करना है तो that time you can use this shape tool in your project। now next is image, where is image, this is image, when you click on the this image, you create the image on your फॉर्म विंडो, और इस विंडो में आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर इसमें डाल सकते हो, कोई भी पिक्चर या इमेज मतलब क्या करता है, द इमेज टूल इज यूज टू इंसर्ट द इमेज, कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इमेज एंड हियर इज द प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन है, ये पिक्चर ऑप्शन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पिक्चर ऑप्शन यू इंसर्ट द डिफरेंट पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में अगर कोई अलग अलग पिक्चर्स है वो वहाँ से उठाकर आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, माय कंप्यूटर, होम, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, see, have you seen, I have inserted the one picture here in this way, means in the image you can insert the picture, okay, and if you want to remove, you just delete the button or remove from the list। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर भी डाल सकते हैं इमेज में। नाउ नेक्स्ट इज पिक्चर बॉक्स, हियर इज द पिक्चर बॉक्स अपर साइड। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पिक्चर बॉक्स एंड यू प्लेस ऑन योर कंट्रोल, व्हाट द पिक्चर बॉक्स इज डूइंग, the picture box tool is provide the space to insert the picture, the default name is picture one। इसमें भी आप पिक्चर डाल सकते हो, इमेज में भी पिक्चर डाल सकते हो, पिक्चर में भी पिक्चर डाल सकते हो, तो बोथ द ऑप्शंस आर देयर। पिक्चर में अगर कोई भी पिक्चर चाहिए तो पिक्चर आप उसमें पिक्चर डाल सकते हो। अभी मैंने पिक्चर टूल में ये पिक्चर डाला हुआ है, तो यहाँ पर आपका फोटो, अगर आपको फोटो यूज़ करना है आपके फॉर्म पर, कभी कभी हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तब हमें हमारा पिक्चर अपलोड करना होता है,
तब हम लोग ये पिक्चर टूल यूज़ करते हैं। ये पिक्चर टूल उसके लिए यूज़ होता है। आया समझ में? सो इन दिस वे द पिक्चर टूल इज यूज। द नेक्स्ट इज टूल टेक्स्ट बॉक्स। पिक्चर टूल के नीचे है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है? टेक्स्ट टाइप करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट वन। बाय डिफॉल्ट उसका नेम क्या आया? टेक्स्ट वन। हाँ, तो टेक्स्ट वन ये नाम उसका आया। हाँ, तो ये टेक्स्ट वन में हमें क्या करना है? हम लोग यूज़र नेम डाल सकते हैं। टेक्स्ट वन में हम लोग यूज़र नेम डाल सकते हैं। अगर उसमें आपको जो लिखना है उसका अगर फॉन्ट बड़ा चाहिए तो उसका फॉन्ट आप बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी आप एंट्री करोगे उसका टेक्स्ट बड़े अक्षरों में आएगा। जैसे कि अगर मैंने F5 ये बटन दबाया, यहाँ पर मुझे टाइप करना है तो बड़े यहाँ पर आप यूज़र नेम डाल सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर नाम डाला सचिन, हाँ, यूज़र नेम। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना ये फॉर्म? हाँ, ये इस तरह से आपका फॉर्म दिखाई देगा। हाँ, अब इसको अगर क्लोज करोगे तो वापस आप आपके कोड डिज़ाइन विंडो में आ जाओगे। हाँ, वो नाउ ये आप यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे डाल सकते हो। और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट 2 हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 2 आ जाएगा। हाँ, उसका भी अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए उसका फॉन्ट चेंज हो गया। अगर उसका कैप्शन निकालना है तो कैप्शन निकाल सकते हो, मतलब जो आप डालोगे वही उसमें आएगा। हाँ, यहाँ से आप उसका टेक्स्ट निकाल दो तो वो चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। सो टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज होता है? टू इंसर्ट द टेक्स्ट। आपको कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? command button. What is the command button? Here is the command button. What the command button is doing? When you click on the command button, you place the button on your window. By default the name is command 1. उसका by default name command 1 आ जाता है। यहाँ पर आप नाम दे सकते हो OK. OK means what? After entering your username and password. Means if this username and password is correct, you place OK. Means you are going to log in this software by using the OK button, and that OK button will check whether your user credential is correct or not. For that purpose this button is used. Means it validates you are the valid user or not. Means it is checking your user credentials. Again you use the different button also if this credential is wrong. So what this second button is used? The second button is used for the cancel. Means whatever the username and password you are typed there, that user credential are not valid. Means if you want to type again, अगर फिर से आपको टाइप करना है तो उसके लिए ये कैंसिल बटन है। मतलब अगर ये रॉन्ग है तो कैंसिल बटन दबाया तो ये क्या हो जाएंगे? ये फिर से ब्लैंक हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज दिस buttons are used. So button, it is the command button are used to create the commands create करने के लिए ये command button होते हैं। Now what is next? Option button. ये option button क्या करता है? See, this is the option button. When you click on this option button, what this option button is are used? Option button is used to check true or false. दो चीज चेक करने के लिए ये ऑप्शन बटन होते हैं। बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या आ जाता है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कुछ भी ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है। सो यू कैन यूज द ऑप्शन 1। यहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हो ट्रू। इसका अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यू आर एबल टू चेंज द फॉन्ट हियर। आप यहाँ से उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ट्रू इन दिस वे। अगर और एक चाहिए आपको तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सेकेंड। उसका नाम दे सकते हो आप फॉल्स। और भी कोई चीज़ें, अगर नंबर ऑफ चीज़ें हैं उसमें से आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है। अगर समझो आपको सिलेक्शन दिया क्लास फर्स्ट सिलेक्ट करना है या क्लास सेकंड सिलेक्ट करना है या क्लास थर्ड सिलेक्ट करना है, क्लास फोर्थ सिलेक्ट करना है,
या क्लास 10 सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो ऑप्शन बटन। तो क्लास 10 पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लास 10 ओपन हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सिलेक्ट द डिफरेंट ऑप्शंस, मीन्स इफ नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, फॉर दैट पर्पज दिस ऑप्शन बटन इज यूज। नंबर ऑफ ऑप्शन अगर है तो उसके लिए ये ऑप्शन बटन यूज करता है। तो आइदर वे यू चूज एनी वन अमंग फ्रॉम देम। 10 चीज़ है तो 10 चीज़ में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन बटन अवेलेबल होता है। फॉर दैट पर्पज दिस ऑप्शन टूल इज यूज। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, लिस्ट बॉक्स। दिस इज द लिस्ट बॉक्स। दिस लिस्ट बॉक्स शोज द डिफरेंट लिस्ट। ये क्या करता है, डिफरेंट लिस्ट शो करता है। दिस इज द लिस्ट बॉक्स, सी ये अलग अलग लिस्ट दिखाता है हमें। अगर हमारे पास कोई किसी डेटा का लिस्ट है तो वो डेटा का लिस्ट हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों का फंक्शन लगभग सेम है। कॉम्बो बॉक्स में हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स में हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। ये थोड़ा एक डिफरेंस है। कॉम्बो बॉक्स में हम लोग लिस्ट भी देख सकते हैं और आइटम भी ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ लिस्ट देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइव लिस्ट बॉक्स। वेयर इज ड्राइव लिस्ट बॉक्स, सी नेक्स्ट इज ड्राइव लिस्ट बॉक्स। हियर इज द ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ये ड्राइव लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइव हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर हमें देखना है तो हम लोग F5 बटन दबाएंगे। हाँ, तो ड्राइव लिस्ट बॉक्स यहाँ पे और निकल गया, चलो ठीक है। हाँ, सी ड्राइव लिस्ट बॉक्स इज यूज टू शो द ड्राइव, मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी ड्राइव हो वो सारे ड्राइव हमें दिखाता है। आया समझ में? है तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइव डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल लिस्ट बॉक्स। नेक्स्ट इज फाइल लिस्ट बॉक्स। वेयर इज फाइल लिस्ट बॉक्स? दिस इज द फाइल लिस्ट बॉक्स। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फाइल लिस्ट बॉक्स तो बहुत सारी आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स है, सिस्टम फाइल्स, वो सिस्टम फाइल्स आपको क्या करेंगी, आपको दिखाएगा आपके कंप्यूटर में। हाँ, आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स है वो फाइल का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा। नेक्स्ट इज लाइन टूलबार। लाइन टूलबार इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द फॉर्म। आपके फॉर्म पर अगर लाइन ड्रॉ करनी है, हाँ, आपको किस तरह का लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से आप लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कोई 2 सेक्शन बनाना है या 3 सेक्शन बनाना है या अलग अलग सेक्शन दिखाना है तो उसके लिए लाइन टूल बॉक्स यूज होता है। नेक्स्ट इज डाटा टूलबार। दिस डाटा टूलबार इज यूज टू कनेक्ट योर फॉर्म to your records. So data tools provides an interface for connecting a visual basic form to a database. आपका जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपके डेटाबेस में, जहाँ पर ये सारी रिकॉर्ड, जितना भी आप रिकॉर्ड यहाँ पर डालोगे, टाइप करोगे तो वो रिकॉर्ड कहीं पर तो स्टोर होना चाहिए। तो जहाँ पर वो स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए दिस डेटा टूल इज यूज। ये डेटा टूल उसके लिए यूज होता है। So data control is used to connect with database, means data control is bound and it helps to navigate the records which are saved in the database. तो database में जो record सेव होंगे उनके लिए ये data tools available होता है, use होता है। So all these are called as a tools. इन सबको tools कहते हैं। तो सारे tools सबको समझ में आए? Okay. Now we are moving the next topic, that is what, C. So next topic is what, C. Creating a visual application involves various steps. अगर हमें विजुअल एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है हमें? क्रिएटिंग द इंटरफेस, सेटिंग द प्रॉपर्टीज अपीयरेंस एंड राइटिंग अ कोड।
ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट इज क्रिएटिंग द इंटरफेस, सेकंड इज सेटिंग द प्रॉपर्टीज अपीयरेंस एंड राइटिंग अ कोड। क्रिएटिंग अ इंटरफेस मीन्स व्हाट, ये पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉर्म ऐड करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट में। जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्म ऐड किया है यहाँ पर, ये फॉर्म फर्स्ट हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फॉर्म ऐड करने से क्या होता है, वी कैन इंटरैक्ट विद द वी कैन इंटरैक्ट विथ आवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन से हम लोग इंटरैक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द फाउंडेशन, ये पहला फाउंडेशन है, पहला स्टेप्स है फॉर्म ऐड करना या फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म डिजाइन करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है फॉर्म को ऐड करना और उस पर कंट्रोल को प्लेस करना, ये पहला स्टेप है क्रिएटिंग द इंटरफेस। मतलब हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस हो जाता है, इससे हम लोगों को आसानी होती है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। सो फॉर दैट पर्पज दिस इंटरफेस इज यूज, मीन्स द फॉर्म आर यूज टू ऐड अ विंडोज dialog box to the application, and the first step in the building a visual basic application is to create the forms, and that will be foundation for the application interface। ये क्रिएट होने के बाद ये फाउंडेशन हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ये फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है, इसके जरिए हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड step, what is second step, that is setting properties appearance। setting properties appearance means it is the next step is to set the properties of the objects you have created, whatever the objects। so what is this, it is the next step to set the properties of the object। जो भी आप properties जो भी ऑब्जेक्ट डालोगे आपके फॉर्म पर, यहाँ पर हम लोगों ने कितने सारे ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं, फ्रेम डाला हुआ है, लिस्ट बॉक्स डाला हुआ है, ड्राइव बॉक्स डाला हुआ है, ऑप्शन बटन डाला हुआ है, पिक्चर बॉक्स डाला हुआ है, कमांड बटन डाला था, टेक्स्ट बॉक्स डाला था, लेबल डाला था, इतने सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है और इंक्लूडिंग दिस फॉर्म, मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये जो फॉर्म है इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में। प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पे राइट साइड में जाकर हम लोग इन सब की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो ये प्रॉपर्टीज क्यों सेट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से अपियर होने चाहिए हमारे विंडो पर, ये किस तरह से दिखाई देने चाहिए, इनका बैकग्राउंड कैसे दिखाई देना चाहिए, इनका फॉन्ट कैसे होना चाहिए, इनमें कलर कैसे होने चाहिए, इनका साइज कितना चाहिए, ये सारा अपीयरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के जरिए। So for that purpose this is the second step, setting the properties and appearance, setting the properties and appearance। The next step is to set the properties of the object you have created, and the property window gives a simple way of setting the properties for all objects on the form। आपके फॉर्म पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्टीज सेटिंग के लिए हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज कमांड्स फ्रॉम द व्यू मेनू यू कैन चूज एंड प्रॉपर्टीज बटन्स ऑन द टूलबार। इफ फंक्शन इज कीज टू प्रेस। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज चेक करना है तो सेट करना है तो आप F4 बटन दबा सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, राइटिंग अ कोड। सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है राइटिंग ए कोड। मतलब जितने भी कंट्रोल्स आप लोगों ने फॉर्म विंडो पर डाले हुए उन सब कंट्रोल्स का हमें क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। द कोड विंडो इज द प्लेस, वो ऐसी जगह है फॉर राइटिंग द विजुअल बेसिक कोड फॉर द एप्लीकेशन, जहाँ पर हम लोग विजुअल बेसिक के कोड टाइप करते हैं। एंड कोड इंक्लूड्स, इस कोड में क्या होता है, कोड इंक्लूड्स लैंग्वेज स्टेटमेंट, उसमें लैंग्वेज स्टेटमेंट होते हैं। और क्या होता है उसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अगेन वी कैन डिक्लेरेशन, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हुए। सो कोड इंक्लूड्स लैंग्वेज स्टेटमेंट, कॉन्स्टेंट एंड डिक्लेरेशन। Using the code window, you can quickly view and edit any of the code in the application. To open the code window, double click on the form या कंट्रोल पर या फॉर्म पर डबल क्लिक करो। अगर फॉर्म पे डबल क्लिक किया तो आप फॉर्म के कोड पे चले जाओगे। किसी कंट्रोल पर, कोई भी कंट्रोल पर अगर आपने क्लिक किया तो आप उस कंट्रोल के कोड में चले जाओगे। ये अभी देखिए मैंने यहाँ पर, ये फॉर्म है, फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म विंडो के कंट्रोल पे चला जाऊँगा।
आया समझ में? इस तरह से मैं उसके कोड में चला जाऊंगा। मुझे वापस डिज़ाइन में जाना है तो मैं वापस डिज़ाइन में आ सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं किसी कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं उस कंट्रोल के कोड में चला जाता हूँ, उस कंट्रोल के कोड में चला जाता हूँ यहाँ पर वापस। तो इस तरह से हम लोग उस कंट्रोल और ऑब्जेक्ट के कोड में चले जाते हैं। और यू कैन प्रेस द F11 फंक्शन टू एक्सेस द कोड। आप सीधा F11 बटन भी दबा सकते हैं कोडिंग में जाने के लिए। है? तो ये दीज आर द 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स होती हैं पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। सी, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, Visual Basic project, it is the project which saves by using a .vbp extension. जब ये प्रोजेक्ट सेव होता है तो .vbp प्रोजेक्ट एक्सटेंशन से ये सेव किया जाता है। नाउ इट कंटेन्स व्यू मोड, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कंटेन्स व्यू मोड। यहाँ पर व्यू कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, बाय विच वी आर नेविगेटिंग। मतलब इस तरह से हम लोग उसको नेविगेट कर सकते हैं कोड विंडो में या डिजाइन विंडो में। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सी द लिस्ट बिलो आर सम द फाइल टाइप्स, दे आर पर्पज। यहाँ पर बहुत सारी फाइल टाइप्स दी गई है। जैसे कि देखिए, पहला फाइल टाइप क्या है? A project file keeps the track of all the components of a project and is saved with .vbp file extension. जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो वो .vbp प्रोजेक्ट से हमें सेव मिलता है। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर में कहीं पर भी .vbp एक्सटेंशन वाला फाइल मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि वो विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट का फाइल है। सेकेंड है फाइल फॉर अ फॉर्म कंटेंट्स .frm। आप उस प्रोजेक्ट में आपका फॉर्म जब आप सेव करते हो तो फॉर्म का एक्सटेंशन होता है .frm। वो फॉर्म .frm से नाम से सेव होता है। बाइनरी डेटा फाइल फॉर ईच फॉर्म कंटेंट्स डेटा फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ द फॉर्म एंड दिस फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट एनी .frm फाइल। जब भी आप जितने भी फॉर्म्स क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली .frm फाइल से वो स्टोर होते जाएगा। एंड इट कंटेन्स अ स्मॉल आइकॉन, एक फॉर्म का आइकॉन वहाँ पर आ जाएगा, एक छोटा सा फॉर्म का आइकॉन, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर ये आइकॉन दिखाई दे रहा है फॉर्म 1 नाम के बाजू में। तो ये आइकॉन क्या हो जाएगा? हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वो जहाँ पर स्टोर होगा .frm नाम से स्टोर होगा और वहाँ पर आइकॉन आ जाएगा। थर्ड है फाइल फॉर ईच क्लास मॉड्यूल कंटेंट्स .cls। अगर आप कोई भी फाइल क्लास मॉड्यूल डालोगे, क्लास मॉड्यूल यहाँ पर ये देखिए, ये क्लास मॉड्यूल हम लोगों ने ऐड किया हुआ है तो ये .cls नाम से स्टोर होगा, .cls नाम से स्टोर होगा। अगर हम लोग मॉड्यूल ऐड करते हैं, हम लोग कोई स्टैंडर्ड मॉड्यूल ऐड करते हैं तो .bis नाम से वो स्टोर होगा। यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं ना, देखिए हम लोग यहाँ पर अगर मॉड्यूल ऐड किया, यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया, तो ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 ये .bas नाम से वो स्टोर होगा, .bas नाम से वो स्टोर होगा। ये फाइल कंटेंट्स ActiveX कंट्रोल, तो वो ActiveX कंट्रोल अगर हम लोगों ने ऐड किया तो .ocx नाम से वो स्टोर होगा, .ocx। यहाँ से हम लोग अगर ActiveX कंट्रोल यहाँ पर देखिए, यूजर कंट्रोल हम लोगों ने ऐड किया है, यूजर कंट्रोल हम लोगों ने ऐड किया है, तो ये जो यूजर कंट्रोल है ये .ocx नाम से स्टोर होंगे। दिस यूजर कंट्रोल विल बी सेव एज .ocx से वो स्टोर होंगे। सिंगल रिसोर्स फाइल कंटेंट्स .res फाइल नेम एक्सटेंशन, सिंगल रिसोर्स फाइल। जब भी वो ये पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा, ये प्रोजेक्ट सेव होने के बाद इसका एक रिसोर्स फाइल बनता है एंड दैट रिसोर्स फाइल विल बी सेव बाय यूजिंग .res नेम, .res एक्सटेंशन। .res एक्सटेंशन से वो फाइल क्या होगी? स्टोर होगी। सो ऑल दीज आर द फाइल्स, दे व्हेन वन प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, so all these files are included and they are saving by different extension. Okay, now the next point is what? See,
The next topic is what menu bar. Now what the menu bar is doing, menu bar shows us different menus. Which are that menus? See, first is new project. In the file menu, if you click on the file menu, you find out there new project. For creating a new project, Control N, it is the shortcut key. ओपन अ प्रोजेक्ट, अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो उसको आप ओपन कर सकते हो कंट्रोल ओ की, कंट्रोल प्लस ओ, दिस इज द शॉर्टकट की. ऐड अ प्रोजेक्ट, यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्सी, एक्टिव एक्स कंट्रोल. हाँ, सो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो. रिमूव प्रोजेक्ट्स, हाँ, अगर दो प्रोजेक्ट एक साथ है उसमें से एक प्रोजेक्ट रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं. सेव प्रोजेक्ट एंड सेव एज प्रोजेक्ट. नाउ दे इफ वी वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट सेव करना है, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, व्हाट आई एम डूइंग, हाँ, आई जस्ट क्लिक ऑन द फाइल सेव एज, हाँ, आई गो इन द ड्राइव, select any folder or create any folder here, just like this, and save. When I click save, that project will be saved in this way, and ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा इस तरह से. When I click or go in the option, इन दिस वे वी कैन सेव आवर प्रोजेक्ट. तो इस तरह से प्रोजेक्ट पूरा सेव हो जाएगा. और स्टैंडर्ड मेनू विल गिव प्रोवाइड दिस ऑप्शन टू सेव द टोटल प्रोजेक्ट. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड OOPS अप्रोचेस. बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स what kind of options or objects we are using in our Visual Basic 2000 Visual Basic 6.0. Now see what is OOPS. OOPS means object oriented programming language. See OOPS, the first type is in the OOPS is object. An object refers to an entity that is used to store a computer program and its data together. ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक एंटिटी है जो आपके कंप्यूटर में आपका डेटा और आपका प्रोग्राम उसको स्टोर करने के लिए हेल्प करता है. एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एन एंटिटी दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स डेटा टुगेदर. आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम मतलब आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और उसका डेटा एक साथ स्टोर करने के लिए हेल्प करता है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. क्लास क्या करता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. मतलब एक ही टाइप के अगर सेम क्लास है और वो आपने आपके प्रोग्राम में यूज़ किए हुए तो ये क्या करता है उसको, इट इज़ द कलेक्शन. क्लास मतलब वो कलेक्शन होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है क्लास. अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने यूज़ किए हुए तो वो क्या होता है, उसका कलेक्शन होता है. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. वंस अ क्लास इज डिफाइंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड. एक बार आप लोगों ने वो क्लास डिफाइन कर लिया उस नाम से तो वो आपके प्रोजेक्ट में आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड क्लास. नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. What is data abstraction and encapsulation? See, so data abstraction means what? Whatever the functions you are using in the class. एक क्लास में आप लोगों ने जितने भी कंसेप्ट या फंक्शंस यूज़ किए हुए तो सेम फंक्शंस वी कैन एब्स्ट्रैक्ट या वी कैन डिफाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स. हम लोग उसको अलग जगह पे, हर एक जगह पे अलग अलग जगह पर वो उसको क्या कर सकते हैं, री यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूशन. नाउ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द रीयूजेबिलिटी. द सेम कोड वी कैन यूज़, मतलब सेम फीचर्स वी कैन यूज़ in the existing class also, and we are using the same features in the different class also.
वही फीचर्स हम लोग एक क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और सेम फीचर्स वी कैन यूज इन द डिफरेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एंड वी कैन चेंज, हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब उसी फीचर्स को हम लोग थोड़ा और अल्टर करके मॉडिफाई करके उसको चेंज भी कर सकते हो। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट मेनी क्लासेस कैन गिव द सेम प्रॉपर्टीज और मेथड, मेनी क्लासेस कैन गिव द सेम प्रॉपर्टी एंड मेथड। बहुत सारे क्लासेस अगर हम लोगों ने यूज़ किए तो उनका सेम प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है और सेम मेथड भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम लोग अलग अलग क्लासेस यूज़ कर रहे तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेथड्स होंगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग मेथड और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होंगे, ऐसे नहीं सेम हो सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा कहते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू मल्टीपल एक्टिवेक्स इंटरफेस। हम लोग मल्टीपल एक्टिवेक्स इंटरफेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेक्स इज अ फ्रेमवर्क यूज टू डिफाइन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्टिवेक्स क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है दैट कैन बी यूज टू डिफाइन रीयूजेबल ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक्टिवेक्स कंट्रोल हर एक सॉफ्टवेयर में, अलग अलग प्रोजेक्ट में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द OOPS approach that we can use in our Visual Basic 6.0. This is the end of this chapter. Thank you, students.